सो हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक। सो गाइस, जिस वीडियो का, जिस पल का, जिस दिन का आप सभी लोगों को इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है। मेगा बेट्यूबर कोलैब, तो ये है उसका वीडियो। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो में 100% गारंटी है कि आपको ये वीडियो पसंद आने ही वाला है। सो अभी के अभी लाइक मारो, अभी के अभी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो आज का टॉपिक है टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कि तीनों जनरेशन्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स, ओरिजिनल, मेटल एंड बर्स्ट, तीनों के मिलाकर टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स के बारे में बात करने वाले। सो गाइस, अभी के अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, इसमें टोटल 15 बेट्यूबर्स या फिर यूट्यूबर्स होने वाले हैं, जो कि है योर एनिमे गाय, एनिमे डिटेल जोन, पॉकेट क्रिमिनल, डिज्नी न्यूज़ नेटवर्क इंडिया, एनिमे स्क्रीन, अल्टीमेट नागा एक्स, मिस्टीरियस चार्जर्ड एक्स, इनक्रेडिबल इन्फरनेप, इंडियन एनिमे होम, स्ट्राइक एम्पेरियर एक्स, पोके ऑल टाइम, पोके गॉसिप्स, पोके सोल, पोके वर्ल्ड एक्स एंड मैं भी। तो ये 15 यूट्यूबर्स या फिर बेट्यूबर्स इस कोलैब में होने वाले हैं। तो गाइस, अब कोलैब मेंबर्स के बारे में तो बात कर ली, तो अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट बेब्लेडर्स फ्रॉम ऑल टाइम। तो इसमें हम किसी भी एंटागोनिस्ट को नहीं लेने वाले, मतलब किसी भी विलन को नहीं लेने वाले, बिकॉज उनके पास डार्क पावर होती है। बट जो लोग बाद में सुधर गए थे, एग्जाम्पल के लिए शू एंड काय, तो उन जैसे ब्लेडर्स को हम लेने वाले हैं इस लिस्ट में। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 30 से। तो नंबर 30 पे बताने वाला है पॉकेट क्रिमिनल। पॉकेट क्रिमिनल नंबर 30 एंड 29 का ब्लेडर्स के बारे में बताने वाले हैं। एंड यार, वो इंग्लिश में बोलने वाले हैं, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हिंदी सबटाइटल्स देख सकते हैं, नीचे मैं लगा दूंगा। Hyuga Hisashi, known as Hyuga Asahi in Japan, in one of two main protagonists, along with his older brother Hikaru of the anime series and manga also, Beyblade Burst Surge. He fought with his Blader Super Hyperion Exceed A1 until it was destroyed by Lane Valhalla. He later evolved it into Hyperion Flaming Co Exceed Plus X. Hikaru Hisashi, known as Hikaru Asahi in Japan, in one of the two main protagonists along with his younger brother Hyuga of the anime manga series, Beyblade Burst Surge. He fought with his Beyblade Colossal Helios Zone 1B until it was destroyed by Lane Valhalla. He later evolved his destroyed by Helios Blazebringer OU Zone Plus Z. Mistle. First appearance in anime is the episode of The Mysterious Mistle. Mistle's favorite dialogue is, "Think like a sparrow, moving like a hummingbird." Mistle is the character in the original series consisting of Beyblade G Revolution. He is a member of the Bega League. His big beast and Beyblade is Poseidon. Mistle is a young man with spiked blonde hair and blue eyes. He normally wears a four-eyed mask, probably to make him look more intimidating, even though he is not really mean. Mistle is quite a mysterious character by nature, as quoted from the Beyblade episode. He has strange abilities that make it seem like he can float in mid-air. Water is his element and he uses it well. Mistle is a nice guy all around, if sometimes blunt with his body, and seems to somewhat offend White Tiger X when they find him in their camp. And he comments on how they obviously cannot retrieve the fruits from atop the cliff like he can. He appears to have befriended Ray and the White Tiger when he first appears. He nearly persuaded Ray to join Bega. He is proved to be strong blader when he defeats Lee easily and holds his own against Ray before an accident occurred and the battle has to end without deciding a winner. In the Japanese ending, Mistle had traveled back to China and visited the White Tiger X team. हाय गाइस, मैं हूँ एनिमे स्क्रीन और आज मैं आपको बताऊंगा टाला और कर्ट्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। सो टाला जो है वो है ओरिजिनल सीरीज़ का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर्स, और उसकी स्टोरी लाइन कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि हमें पहली बार दिखाया जाता है जब काय जो है बोरिस से मिलता है, उस समय दिखाया जाता है हमें वो, एंड वहाँ दिखाया जाता है कि वो ऑल स्टार्स को कैसे ईजिली बीट कर देता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जब काय ब्लैक ड्रॉन्जर को छोड़ देता है एंड वापस आ जाता है ब्लेड ब्रेकर्स में, एंड जब फाइनल में बैटल होती है डेवोल्यूशन बॉयज़ ऑफ ब्लेड ब्रेकर्स की, तब टाइसन और टाला के बीच फाइनल होता है बैटल। और टाला जो भी बिग बीस्ट ब्लैक ड्रॉन्जर ने एक्वायर किए थे, उसकी शक्ति के बाद भी उसका वॉल्टॉर जो रहता है वो टाइसन से फर्स्ट मैच में हार जाता है। और उसको टाला, बायरन और स्पेंसर तीनों ही छोड़ देते हैं डेवोल्यूशन बॉयज़। एंड फिर हमें टाला दिखाया जाता है जी रेवोल्यूशन में, जहाँ पे वो ब्लिट्जक्रीग वॉयस फॉर्म करता है। एंड फिर हम
बात करते हैं कर्ट बैटियर के बारे में। तो कर्ट बैटियर बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन का कैरेक्टर है, उसे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है और वो फॉर्मली वर्ल्ड चैंपियन भी था। हालांकि बोरिंग बैटल्स की वजह से उसने सब त्याग दिया और वो अंडरवर्ल्ड चला गया, जब बाद में फिर कुछ सालों बाद फ्री अब वर्ल्ड चैंपियन था। तो वो इंटरनेशनल ब्लेडर्स कप में हिस्सा लेता है और वो बहुत ही रटलेस ब्लेडर है। सिखाया जाता है जब वो वॉल्ट को हरा देता है तो उसके बी को ऑलमोस्ट को चलने जा रहा है। फिर उसकी बैटल होती है टाई ब्रेकर मैच के लिए वॉल्ट से रीमैच, और वॉल्ट से बैटल होने के समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका नेचर चेंज हो गया है। जब वो हार भी जाता है तभी भी उसका नेचर बहुत ही काइंड रहता है और अब वो सुधर गया था। एंड फिर हमें वो टर्बो में भी दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्ट को चैलेंज करता है उसके वर्ल्ड चैंपियन टाइटल के लिए, और जहाँ बताया जाता है कि उसका रैंक जो है वो है 6th। एंड रिट को वो जब चैलेंज करता है तब उन दोनों के बीच बैटल थी जो कि अच्छी खासी, बट एट द एंड वॉल्ट उसे एक बस फिनिशर हरा देता है 3-1 के स्कोर से। सो हे गाइस, मैं हूँ स्ट्राइक एम्परर एक्स एंड अब हम बात करने वाले हैं नंबर 26 के बारे में। सो नंबर 26 पर जो ब्लेडर आता है उसका नाम है डाइची। डाइची जो कि हमें बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज के 3rd सीजन में देखने को मिला था। एंड ये ब्लेडर एनर्जेटिक तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये काफ़ी पावरफुल भी है। एंड औरों की तरह इसका ड्रीम भी था टाइसन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनना। एंड ये जिस ब्लेड को यूज़ करता है उसका नाम है स्ट्रेटा ड्रैगन, जो कि एक काफ़ी पावरफुल बे है। एंड इसने टाइसन के साथ टीम बनाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। एंड उसके अलावा डाइची ने कई पावरफुल अपोनेंट्स को भी हराया है। तो इस वजह से डाइची आता है इस लिस्ट में नंबर 26 पर। सो अब हम बात कर लेते हैं नंबर 25 के बारे में। सो नंबर 25 पर जो ब्लेडर अपनी जगह बनाता है उसका नाम है सुबासा। सुबासा जो कि हमें बेब्लेड मेटल सीरीज में देखने को मिला था। एंड जब हमने इसे पहली बार देखा था तो हमें पता चला था कि सुबासा WBBA के लिए काम करता है। एंड अगर हम बात करें इसके नेचर के बारे में तो ये काफ़ी शांत और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर है। एंड ये जिस ब्लेड को यूज़ करता है उसका नाम है अर्थ ईगल। एंड कई बार इसने खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराया है। एंड उसके अलावा ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिंगा की टीम के साथ, जहाँ पर इसने कई बार जिंगा को फाइनल मैचों में जीत दिलाई है। और फिर इसी तरह बाद में सुबासा WBBA का डायरेक्टर भी बन जाता है। तो इसी वजह से सुबासा आता है इस लिस्ट में नंबर 25 पर। सो हे गाइस, मैं हूँ अल्टीमेट टागा एक्स और मैं आज आया हूँ एनिमे फैंस के अड्डा के चैनल पे बिगा यूट्यूबर स्कूल ऐप पे। सो नंबर 24 पे आता है साइलस। साइलस का फर्स्ट अपीयरेंस हमें इवोल्यूशन में दिखाया गया था, जिसमें वो वर्ल्ड के बेब्लेड को अपने काइनेटिक सटूब से हरा देता है। साइलस का ब्लेड काइनेटिक सटूब एक डिफेंस टाइप बे है। साइलस ने अपने इवोल्यूशन सीरीज में टोटल 25 बे बैटल्स की है। साइलस का सेकंड अपीयरेंस हमें सर्च पे दिखाया जाता है, जिसमें साइलस का ब्लेड होता है कर्स सैटर्न, जो डिफेंस टाइप ही होता है। साथ में उसने सर्च में 13 बे बैटल्स की है, जिसमें कुछ टैक्टिव बैटल्स भी है। नंबर 23 अगुमा। अगुमा बेब्लेड मेटल सीरीज के सोलर सिस्टम ब्लेडर्स का मेंबर है, जिसका ब्लेड है साइथ क्रोनोस, जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। साथ में उसके ब्लेड का टाइप है स्टैमिना टाइप। अगुमा बेब्लेड मेटल सीरीज के मांगा में एक सबसे बड़ा कैरेक्टर है। अगुमा उन लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक है जिसकी रायुआ के साथ कोई फाइट नहीं हुई है। सो नंबर 22 और 21 की इन्फॉर्मेशन बताने वाला था इनक्रेडिबल इन्फर ने, पर यार उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे ब्लॉक कर दिया। एंड यार मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता कि क्यों ब्लॉक किया। दैट्स वाई मैं उनको इस कोलैब से निकाल रहा हूँ। एंड उनकी जगह अब आ चुके एनिमे फैन AF4। सो हे गाइस, एंड नंबर 22 की तरफ बढ़े तो उसका नाम है ड्रम। एंड ड्रम को कौन नहीं जानता, और ड्रम के बेब्लेड का नाम है कोमोडो ड्रैगन। एंड ड्रम की इंस्पिरेशन है डेल्टा। ड्रम को सब लोग जानते हैं द गोल्डन बॉय के नाम से। नंबर 21 पे है कैंटा, और कैंटा की बेब्लेड की पावर है सजिटेरियस। एंड लास्ट सीन में आपने देखा होगा कि कैंटा को पावर दे दी थी एल ड्रैगो ने, और वो और पावरफुल हो गया। कैंटा का निकनेम है कांजी। आई होप आपको ये कोलैबोरेशन अच्छा लगा हो। नंबर 20 लैंडर। तो लैंडर का पूरा नेम है लैंडर शाकाडेरा, जिसका जापानीज नेम है काइजा हैक्वनजी, जो कि एक रिकरिंग कैरेक्टर है बेब्लेड बर्स्ट सीरीज का। एंड इसके साथ साथ ये सुप्रीम 4 का भी मेंबर है। एंड इसकी एक टीम भी है जिसका नेम है द स्वॉर्ड फ्लेम्स। एंड इसके बेब्लेड का नेम है एक्सकैलियस फोर्स एक्सट्रीम। तो नंबर 19 तिथि। तो तिथि बेब्लेड मेटल सागा का एक रिकरिंग कैरेक्टर है जो कि फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में। एंड ये एक लेजेंडरी ब्लेडर है। एंड इसकी स्पेशलिटी है एज अ सोलर सिस्टम ब्लेडर, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट वीनस को। एंड इसके बेब्लेड का नेम है डेथ क्वेट्ज़लकोट 125 RDF।
मेरे फैंस एंड भाई को थैंक्स इतने कमाल के चैनल मुझे बनाने के। मुझे इस चैनल में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है। तो अगर बात करूँ नंबर 18 में, तो नंबर 18 में एक किंग जो मैं बेब्लेड मेटल व्यू में दिखाया गया था। उसके पास वेरियस नाम का बेब्लेड है जो डुअल स्पिन कर सकता है, उसके साथ उसके टिप को चेंज कर सकता है, मतलब डिफेंस स्टैमिना इन सब में चेंज कर सकता है। और किंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है और जब अपनी फुल पावर यूज़ करता है तो उसके बाल भी उठ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का ब्लेडर है और वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है और उसने मेटल फिल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्लेडर है और मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग अब बात करें नंबर 17 की। नंबर 17 में क्रश है जो मैं बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में दिखाया गया था और वो बहुत ही हट्टा करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है और उसने वॉरिस के लिए काम किया था पहले और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है उसके पास और वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है। उसका लॉन्चर कभी मतलब गन की तरह है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लॉन्च करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है वो। के बीस का नाम है गिगर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीस था और वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड बंदा है जो अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और उसने वॉइस की टीम भी इसलिए ज्वाइन की थी जिससे वो अपनी बहन का ऑपरेशन कर पाए और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने वाला बंदा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है, उसने नंबर 70 पे जॉब बना है। तो थैंक्स कहूँगा मैं एनिमे फैंस को मुझे कॉलेज में बुलाने के लिए और इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे फैंस को क्योंकि ये बहुत कमाल का कंटेंट देता है, बहुत ही अच्छा बंदा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करो। सो यो गाइस, कैसे हो? मैं हूँ पोके ऑल टाइम एंड नंबर 16 पर जो ब्लेडर है वो है लुई शिरोसाकी एंड लुई हमें बेब्लेड बर्स्ट की स्टार्टिंग से ही देखने को मिल रहा है एंड लुई एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। उसके पास एक बेब्लेड है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज अटैक टाइप है जिसका नाम है लुइनोर एंड लुई शिरोसाकी बिग 5 एंड सुप्रीम 4 का मेंबर भी है एंड यार वो लेजेंडरी ब्लेडर में भी गिना जाता है बेब्लेड बर्स्ट पे एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। नंबर 15 पर है डायनामिस एंड डायनामिस हमें देखने को मिला था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में एंड वो सोलर सिस्टम का लेजेंडरी ब्लेडर है जिसमें 5 ब्लेडर्स आते हैं, उसमें से डायनामिस भी एक लेजेंडरी ब्लेडर है एंड उसके पास एक अल्टीमेट डिफेंस टाइप बेब्लेड है जिसका नाम है जेड जुपिटर जो कि काफ़ी कमाल का भी है एंड जो डायनामिस है वो एक टेम्पल का गार्डियन भी है। इतना ही नहीं, जो जुपिटर प्लैनेट है उसको डायनामिस रिप्रेजेंट करता है। सो या हेलो एंड वेलकम गाइस, यार मेरा नाम है मिस्टीरियस चार्जर एक्स और मैं अपने फ्रेंड एनिमे फैंस के अड्डा के चैनल पे आया हूँ मेगा कोलैब को करने के लिए। हाँ, इन लोगों ने मुझे ये काम 10-15-20 दिन पहले दिया था पर मैं भूल गया था, आज इन लोगों ने याद दिलाई तो कर रहा हूँ। नंबर 14 बात है गार्लैंड और गार्लैंड हमको सबसे पहले जी रेवोल्यूशन सीरीज में दिखाया गया था और ये बेगर टीम का लीडर भी था। बात कर ले गार्लैंड की पावर के बारे में, तो यार गार्लैंड इतना पावरफुल है कि इसकी और टाला की बैटल हुई थी जिसमें इसने टाला को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि वो एपिसोड 36 से लेके एपिसोड 51 तक हॉस्पिटल में रहा था। आप लोग इससे तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि गार्लैंड कितना पावरफुल ब्लेडर है और गार्लैंड की बेब्लेड का नाम है अपोलोन। अगर आपको अभी भी गार्लैंड की पावर पे शक हो रहा है तो आप जाके जी रेवोल्यूशन सीरीज का एपिसोड 36 देख सकते हैं। नंबर 13 पर आता है आइगर और आइगर हमको सबसे पहले बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में दिखाया गया था। शुरू में तो आइगर हमको बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाया गया था पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई थी आइगर और स्ट्रॉन्ग बनता गया था वोल्ट को देख के और लास्ट में आइगर ने वोल्ट को भी हरा दिया था। यार आइगर बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर था। आइगर की बेब्लेड का नाम था टर्बो अकिलेश। बस यही रीजन था कि आइगर को हमको नंबर 13 पे रखना था, वैसे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। तो गाइस, मेरा नाम है पोकीसोल। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज टायसन के बड़े भाई हीरो के बारे में। तो भाई हीरो में सबसे पहले बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में दिखाया गया था और साथ ही वो टीम ब्लेड ब्रेकर जो कि टायसन की टीम है उनका कोच और साथ में मैनेजर भी था। उनकी पूरी टीम का सारा काम वही मैनेज करता था। साथ ही जब जब टायसन को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है, जब जब टायसन को मोटिवेशन देने के लिए हीरो आगे आया है, तो हीरो और टायसन की रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है, मतलब एज अ भाई। तो भाई हीरो एक काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, साथ में एक अच्छा ब्लेडर भी है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फोस्ट के बारे में जो कि नासामुने का एक काफ़ी अच्छा दोस्त है। नासामुने, टोबी और जियो तीनों अमेरिका में बड़े हुए, मतलब तीनों ने वहीं पे बैटल की। तीनों अच्छे खासे दोस्त थे, तीनों एकदम भाई जैसे दोस्त थे। और उन दोनों नासामुने और जियो में सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्लेडर टोबी था। और भाई जब टोबी फोस्ट बना उसके बाद भाई उसने सिंगल मतलब अकेले ही जिंगा और नासामुने से अकेले ही टक्कर ले रही थी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि जिंगा एक काफ़ी पावरफुल ब्लेडर है और साथ में नासामुने भी कम लिया। उन दोनों से अकेले भिड़ गया था फोस्ट। तो भाई यहीं से आप फोस्ट की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं आपका प्यारा युवराज पोके गॉसिप्स यूट्यूब चैनल से। सो नंबर 10 पे जो ब्लेडर आता है वो है क्रिश। क्रिश एक लेजेंडरी ब्लेडर होने के साथ ही साथ एक विंटर ब्लेडर भी है। क्रिस हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था बेब्लेड के सीजन बेब्लेड मेटल फ्यूरी में। क्रिस एक कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज्यादा क्रिस में, और क्रिस कभी कदा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। क्रिस के बेब्लेड का नाम है फैंटम ओराइन जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैमिना टाइप बेब्लेड है
और इस बेब्लेड का स्पेशल मूव है बैनर्स लूप, जो कि बहुत भयंकर, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। सो नंबर 9 पे आता है मैक्स। तो मैक्स एक प्योर स्ट्रैटेजिस्ट और एक डिफेंसिव ब्लेडर है। इसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज़्यादा ऑसम है। ये हमेशा न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ आता है और मुझे लिटरली इसकी स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आती है। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और इसकी बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके साथ ये हमेशा कोई ना कोई न्यू टेक्निक इस्तेमाल करता है। और इसके बेब्लेड का नाम है ड्रेसियल मेटल बॉल, जो कि एक बहुत अच्छा डिफेंसिव बेब्लेड है। और मुझसे पूछा जाए, इन माय ओपिनियन, मैं इसे टाइसन और काई के साथ रैंक करना पसंद करूंगा। ये उसके लेवल का है, दैट्स व्हाई मैंने इसे 9th पोजीशन पे रखा है। सो गाइज 8th प्लेस में जो ब्लेडर आता है उसका नाम है रे। जी हाँ गाइज, ओरिजिन सीरीज ऑफ बेब्लेड का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर रे है। एंड उसका बेब्लेड के बिट बीस्ट जो है वो एक व्हाइट टाइगर है जिसका नाम है ट्रिगर। एंड व्हाइट टाइगर जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिट बीस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है एंड है भी यार। एंड रे को जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था बेब्लेड में, तभी उसे बहुत ही ताकत पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि है उसने जो है एक झटके में मैच को खत्म कर दी थी टाइगर क्लॉ अटैक इस्तेमाल करके। एंड अपोनेंट का बेब्लेड जो है चूर चूर हो गया था। एंड इवन टाइसन का भी, उसने टाइसन के अटैक रिंग को यार चूर चूर कर दी थी। एंड भाई टाइसन कुछ कम नहीं है, क्योंकि तब तो यार वो स्टार्टिंग में था बिट बीस्ट को कंट्रोल करने में, बट फिर भी रे जो है बहुत ही ताकतवर ब्लेडर है। आई मीन यार आपको कुछ कहना जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, अगर आप लोगों ने बेब्लेड को देखा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने देखा होगा बेब्लेड को। एंड गाइज हम अगर 7th प्लेस की बात करें तो 7th प्लेस में आता है फ्री डे ला होया। जी हाँ गाइज, बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था, जिसका बेब्लेड का बिट बीस्ट का नाम था फैफनेर। एंड भाई स्टार्टिंग में जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, वो लाइक हाथ से स्पिन करता था बेब्लेड को। एंड उसका जो बेब्लेड था एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग का था, जिसका फायदा ये था कि अपोनेंट का बेब्लेड अगर उसे टक्कर दे तब वो जो है स्पीड होता जाएगा एंड सर्वाइवर फिनिश में जो है आसानी से हरा देगा अपने अपोनेंट को, जिसके लिए उसने जो है बहुत दिनों तक लाइक लिटरली वो हर बार सिर्फ हाथ से स्पिन करता था। एंड भाई अगर उसने लॉन्चर से लॉन्च किया तो लाइक पूछो ही मत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लाइक लॉन्च करते ही उड़ा देगा नॉर्मल बेब्लेड को, लाइक चूर चूरी कर देगा शायद से। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर फ्री टूर्नामेंट को अधूरा नहीं छोड़ता ना, वो शू के ईवेल्स प्राइजन को यार बहुत ही कड़ी टक्कर दे के हरा ही देता एंड आखिरकार जाके वर्ल्ड को भी हरा देता। उतना ताकतवर था बेब्लेड एवोल्यूशंस में। एंड आगे जाके यार बेब्लेड बस्ट टर्बो राइज में और भी ताकतवर बनता गया एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी भी। सो यार इसलिए फ्री आता है 7th प्लेस में। सो नंबर 6 पे आता है शुक्र। और शुक्र में वर्ल्ड टाइव के साथ साथ यानी बेब्लेड की शुरुआती सीजन एपिसोड 1 से ही दिखाया गया है। और शुक्र वर्ल्ड टाइव का एकदम अपोजिट था, जहाँ पर वर्ल्ड टाइव में शुरुआती पलों में वीक दिखाया गया है, वहीं पर शुक्र में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। एपिसोड 1 से शुक्र ने काफी ज्यादा प्लेयर्स को हराते गया है। और शुक्र कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड प्लेयर है, ये हम सबको पता है। जब आखिरी बार सेमीफाइनल्स में शू लुई से हार गया था, तब से लेकर वो अभी तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया और उससे काफी ज्यादा हार्ड ट्रेन की ताकि वो अगली बार लुई को हरा सके। और हम सभी को ये बात पता है कि शू का हमें एक अलग ही रूप एवोल्यूशन में देखने को मिला, जो था रेड आई, जहाँ पर सीजन 1 में शू काफी ज्यादा काम और फ्रेंडली नेचर का था, वहीं पर वो एवोल्यूशन में आ जाते काफी ज्यादा एरोगेंट बन गया और वो एक रेड आई बन गया। और हम सभी को पता है कि एवोल्यूशन में बस सिर्फ जीत से मतलब था और उसे बस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बनना था। और फिर उसके बाद एवोल्यूशन के एंड तक आ जाते शू वापस नॉर्मल हो गया और वापस वो काम और फ्रेंडली नेचर का हो गया। एंड टर्बो में हम सबको पता है शू हमें एक टीचर की तरह दिखाया गया था फुबुकी के लिए, जिसने उसने फुबुकी को भी काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी एंड एकक को भी डार्क रेजिस्टेंस से बाहर निकलने में उसने काफी ज्यादा मदद की। और हमें एनिमे के अंदर शू और स्पाइडर का बॉन्ड कितना ज्यादा गहरा दिखाया गया है, ये हम सबको पता है। और शू को देखा हमें काफी ज्यादा स्पेशल मूव्स भी दिखाए गए, लाइक काउंटर ब्रेक, अपर लॉन्च एंड ऑल्सो ड्रैक्विलियम विप। एंड ऑल्सो हमें उसके एक पावरफुल लॉन्च भी दिखाया गया है एनिमे के अंदर, जो है क्रश लॉन्च। सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? यार मैं हूँ पोकेवर्ल्ड और आज हम बात करने वाले हैं वोल्टावी के बारे में। तो जो वोल्टावी इसका हमें अपीयरेंस बेब्लेड बस्ट के शुरुआती सीजन 1 से दिखाया गया है और ये बेब्लेड बस्ट का सबसे पहला मेन प्रोटैगनिस्ट है। और स्टार्टिंग से ही वोल्टावी हमें वीक दिखाया गया, मतलब कोई भी बेब्लेड आता था और वोल्टावी को गजब बेइज्जती करके उसे हरा देता था। बट जैसे जैसे स्टूडेंट प्रोग्रेस करती गई वैसे वैसे वोल्टावी समय के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता गया। एंड एवोल्यूशन के एंड तक आते आते हम सभी को पता है कि वोल्टावी एक वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका था।
एंड ऑल्सो वर्ल्ड टावर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर्स को हराया, लाइक शुक्रनाई, फ्रीडल होय, एगर कबान, हर्ट्स और भी कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर जिन्हें वर्ल्ड टावर ने हराया। और सीरीज के अंदर हमें वर्ल्ड और वेल्टर का जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा गहरा और कितना ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया ये हम सबको पता है। एंड ऑल्सो जो वर्ल्ड टावर इसके हमें कई सारे स्पेशल मूव सीरीज के अंदर दिखाया गया है, लाइक रश शूट, अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, अल्टीमेट वी, ब्रेव सॉर्ड एंड ऑल्सो कई और मूव्स है जो हमें सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं। एंड ऑल्सो जो वॉल्ट है उसका हमें एक पावरफुल लॉन्च भी दिखाया गया है जो है स्प्रिंट बूस्ट। और वॉल्ट है जब भी इस लॉन्च को यूज़ करता है वो हमेशा उस बैटल को जीत ही जाता है, मतलब हमेशा वो सामने वाले अपोनेंट का बर्स्ट फिनिश कर ही देता है जब भी वो स्प्रिंट बूस्ट का इस्तेमाल करता है तब। इसके बाद नंबर 4 पे सिर्फ एक ब्लेडर नहीं बल्कि 2 ब्लेडर्स एक साथ आते हैं और वो 2 ब्लेडर्स बिलोंग करते हैं बेब्लेड जनरेशन 2 से, यानी कि बेब्लेड मेटल सागा से। और उन दोनों ब्लेडर्स का नाम है जिंगा एंड कियोया। और आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये दोनों एक साथ इस पॉइंट में क्यों हैं। जैसे कि आप लोगों ने शुरुआत से ही बेब्लेड मेटल फ्यूजन में देखा है कि झिंगा कियोया से थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि झिंगा ने कियोया को मेटल फ्यूजन के सीज़न में हराया था। लेकिन जब हम बात करते हैं बेब्लेड मेटल मास्टर्स की तो वहाँ पे झिंगा का न्यू बे गैलेक्सी पेगासस होने के अलावा भी कियोया ने अपने पुराने बे से ही झिंगा को मस्त टक्कर दिया था और उस टक्कर में पूरा टाई बैटल हो गया था। इसके बाद हमको पता नहीं चला कि उन दोनों में से सबसे ताकतवर ब्लेडर कौन है, क्योंकि उसके बाद झिंगा ने जब लास्ट में डेमियन को हराया तब वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और कियोया ने भी डेमियन को ही हराया था तो वो भी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। तो अगर हम बात करें बेब्लेड मेटल फ्यूरी के फर्स्ट एपिसोड की तो जब एक साथ दोनों के बेब्लेड स्टार फ्रैगमेंट की वजह से इवॉल्व होके फैंग लियोन और कॉस्मिक पेगासस बन जाते हैं तब भी दोनों का जो बैटल रहता है वो टाई पे ख़त्म होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी अभी भी हमको पता नहीं चलता कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। दोनों ही एक साथ इक्वली परफॉर्मेंस कर रहे थे और हर बार उनके बीच टाई हो रहा था। इसके बाद मेटल फ्यूरी के एंड में उन दोनों का एक बैटल दिखाया गया और वो बैटल हमको पूरा तो दिखाया नहीं गया, जस्ट लाइक जी रेवोल्यूशन में काई और टाइसन का बैटल, तो उसमें भी हमको पता नहीं चला कि कौन जीता था। लेकिन एंड तक हमको जितना दिखाया गया है कि झिंगा और कियोया बिल्कुल सेम पावर लेवल पे आते हैं, या फिर हम इतना भी बोल सकते हैं कि खुद राइटर को भी नहीं पता कि उन दोनों में से किसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। तो इसीलिए हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ इस पॉइंट में रखा है। सो इसके बाद नंबर 3 पे जो ब्लेडर आता है वो ब्लेडर बेब्लेड जनरेशन 1 से बिलोंग करता है, जी हाँ, यानी कि बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज से। और वो ब्लेडर बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का मेन प्रोटैगोनिस्ट भी है। अब आप लोग समझ चुके होंगे या फिर गेस कर चुके होंगे कि उस ब्लेडर का नाम क्या है, तो वो ब्लेडर है टाइसन। तो जैसा कि सबको पता है कि टाइसन का कितने ज़्यादा एवोल्यूशन हमने देखा है उसके सीजन्स में, एंड जी रेवोल्यूशन आते आते टाइसन एक बहुत ही बड़ा एंड मैच्योर ब्लेडर बन गया था। जहाँ तक शुरू में हम बात करें सीजन 1 की तो टाइसन तब एकदम नौसिखिया ब्लेडर था, वो धीरे धीरे सीख रहा था एंड उसके बाद धीरे धीरे खुद को और ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जब जी रेवोल्यूशन सीरीज़ के एकदम लास्ट में वो बिल्कुल एक मैच्योर ब्लेडर बन चुका था एंड उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट का सामना किया था जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया था। और उसने जो अपना लास्ट बेब्लेड यूज़ किया था उस बेब्लेड का नाम था ड्रैगन मेटल स्टॉर्म। सो अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे आता है काय के बेब्लेड का नाम है ड्रॉन्जर और वो बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज़ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर है एंड मैंने उसे टाइसन से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि यार सबसे पहले अगर देखो उसने ब्रुकलिन के साथ बैटल की थी काय ने, एंड काय ने ऑफिशियली ब्रुकलिन को हरा भी दिया था। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें टाइसन की तो टाइसन और ब्रुकलिन की जब बैटल हुई थी बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के एपिसोड 51 में, तब हमें उसका रिजल्ट बताया नहीं गया था कि कौन जीता है उस बैटल में। हमें दोनों बेब्लेड्स हवा में जाते हैं एंड नीचे आते देखते हैं एक पंख जो कि वाइट पंछी का होता है और एक होते हैं टाइसन की कैप। तो इसका मतलब है कि दोनों में टाई हो चुका था, यानी कि टाइसन ने अभी तक ब्रुकलिन को हराया नहीं है, बस टाई किया है। बट दूसरी तरफ काय ने ब्रुकलिन को हरा भी दिया था
एंड ये ऑफिशियली कंफर्म था, हमने खुद एनीमे में भी देखा था। तो इसका मतलब ये बनता है कि यार काय जो है वो टाइसन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के लास्ट एपिसोड तक। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पे आता है रायुगा द ड्रैगन एम्परर एंड उसके बेब्लेड का नाम है एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। एंड रायुगा पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर है एंड तीनों टाइमलाइंस यानी कि तीनों डायमेंशंस में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रायुगा बिलोंग करता है बेब्लेड मेटल सीरीज से एंड डार्क नेबुला की वजह से उसे ये एल ड्रैगो बेब्लेड मिला था। स्टार्टिंग में ये इतना खतरनाक बेब्लेड था कि यार लिटरली इसने रायुगा पे ही कंट्रोल कर लिया था। और फिर लास्ट में जब जिंगा ने रायुगा को हराया बेब्लेड मेटल के सीज़न 1 के एपिसोड 51 में, तब बाद में रायुगा का अपना आप पे कंट्रोल आ गया एंड बाद में रायुगा ने एल ड्रैगो पे ही अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। एंड बाद में बेब्लेड मेटल फ्यूरी में रायुगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसने सिंगल हैंडेडली ही जिंगा, कियोया और यूकी को आराम से हरा दिया था। यानी कि तुम लोग अब सोच ही सकते हो कि रायुगा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। बट फिर भी बाद में उसने नेमेसिस से अकेले फाइट की थी, जो कि किसी बंदे के बस की बात नहीं है। एंड यार नेमेसिस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेब्लेड था और खुद रागो को भी पता था कि रायुगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है एंड अगर बाकी के लेजेंडरी ब्लेडर्स आ गए तो उसकी तो कुछ खैर नहीं। इसलिए उसने अपना स्पेशल मूव यूज़ कर लिया था एल ड्रैगो पे और तभी रायुगा की डेथ हमें देखने को मिली थी। एंड यार वो बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था। बट बाद में रायुगा ने अपनी ताकत केंटा को दे दी थी अपने स्टार फ्रेगमेंट की एंड फिर इन्होंने मिलकर फाइनली इन नेमेसिस को हरा दिया था। बट यार रायुगा बस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर है कि यार वो नंबर 1 पोजीशन डिज़र्व करता है। एंड यार आज की ये लिस्ट बस यही तक थी एंड थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मेगा बेट्यूबर कोलैब। आपको सारे मेंबर्स के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी, तो जाके सभी के चैनल एक बार ज़रूर चेकआउट करना यार, बहुत मदद की है यार इन लोगों ने। थैंक्स टू ऑल अगेन। एंड इन सारे यूट्यूबर्स के नाम एक लाइक तो बनता है, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना यार। हमें जल्दी 1K भी करने हैं, 800 नहीं हुए और 1K करूँगा, पर जाने दो यार 1K भी करने हैं हमें। एंड यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना यार, प्लीज़। मतलब लिटरली यार 27 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है एंड यार इतनी मेहनत करने में बहुत ज़्यादा मेहनत निकलता है एंड यार बहुत पसीना भी निकलता है। अगर फ़ैन बंद करके एडिटिंग करूँगा तो पसीना निकलेगा ही। बट यार प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड यार मेरे इंस्टाग्राम का नाम है @FUR, जाके जल्दी से फॉलो कर दो यार। एंड यार मिलता हूँ किसी और ब्रांड न्यू वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट। ये दुनिया है बड़ी प्यारी, यहाँ तो भरी है यारी सारी, हम साथ हैं अपने करेंगे, हमें रोकेगा क्या कोई, डरते नहीं हम किसी से, परवाह न किसी की करते। जर्नी स्टार्ट्स टुडे।